Welcome to Git Academy Plus. So today we will discuss about one of the most important topic in DC machine. And the name of the topic is efficiency in the DC machine. Whenever we figure out the performance parameters of any machine, the one of the most performance parameter of that particular machine is efficiency. If the efficiency of the machine is very high, it means the performance of that particular machine is very good. And if the efficiency of that particular machine is not that much high, it means that there are many losses which are taking place and your machine is not giving you the actual performance which is required to give it. So what are the things because of which the efficiency of the machine is not accurate or efficiency of the machine is not that much, I can call it as a required one. What are the basic difficulties due to which we are not getting the actual efficiency of the machine? Because in case of the electrical machines, whenever we talk about the efficiency of the machines, then we come across first of all then DC machines, then synchronous machines and induction machine. If you see, all these three are the rotating machines. All these three are what? Rotating machines, due to which rotational losses will be there in this particular machine, I square R losses will be there in this particular machines, and constant losses, core losses will be, obviously these are the losses which are available in all these machines. But as these are the rotational machine, so rotating losses will be there. Apart from this three machine, a transformer is the only machine which is the static electromagnetic device. As this machine is static, so there is no any other rotating part, due to which there will not be any other rotational losses in case of the transformer. Just because of this reason, transformer is the device which is able to give the maximum efficiency among all these machines. Transformer can give you 99.99% efficiency. What I am saying, it can give you 99.99% efficiency. So from this you should be able to understand that how high efficiency is possible in case of the transformer. Whereas in case of the DC machine, synchronous machine, induction machine, it is not possible. Just because of this reason that this machine has the rotational losses. This machine comprises the rotational losses, as these are the rotating one. So these are the basic thing कि जो अपन को याद रखने पड़ेंगे जब भी अपन कोई मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो, क्योंकि जितना ज़्यादा अपन को मशीन्स का अंडरस्टैंडिंग होगा उतना अच्छे से अपन को उसके परफॉर्मेंस के बारे में भी पता होगा. तो जब आप किसी भी मशीन का परफॉर्मेंस पैरामीटर जब डिटरमिन करने की बात करते हो तो उसमें एफिशिएंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर. जब मैं आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपको कि वोल्टेज रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है. तो सिमिलरली इन दैट पर्टिकुलर केस एज वेल, transformer efficiency is also one of the most important point. Similarly, in case of the DC machine, now we have reached up to the stage that we can understand the efficiency of the machines. इसका मतलब अपन को मशीन के अंदर के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सारे पैरामीटर्स का, उनमें जो लॉसेस होते हैं सभी का अच्छे से आज अभी स्टडी करना. समझ में आ रही बात? और आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर ये एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन बोला है आपने, इसमें बताया नहीं कि डीसी मशीन में आप जनरेटर की बात करने वाले हो या मोटर की बात करने वाले. बट मैं यहाँ दोनों मशीन्स की बात करूँगा, जनरेटर के बारे में भी बात करूँगा और मोटर के भी बारे में बात करूँगा. ठीक है, बस इतना है कि दोनों में सेम काइंड ऑफ लॉसेस टेक्निक्स होने वाले, बस इतना कि उनका जो वे होने वाला है, जो डायरेक्शन होने वाले, डायरेक्शन अलग अलग होगी इन केस ऑफ द जनरेटर एंड एज दैट ऑफ इन केस ऑफ मोटर. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डीसी जनरेटर का डायग्राम निकालने वाला हूँ. ठीक है, तो जब मैं डीसी जनरेटर की बात करता हूँ तो देखिए this is the DC generator and I am talking about DC shunt generator. ठीक है, so this is the DC shunt generator. ठीक है, तो जब भी आप डीसी शंट जनरेटर की बात करोगे तो जनरेटर तो ऑब्वियसली भाई कि इसका इनपुट क्या होगा, मैकेनिकल होगा. ठीक है, एंड आउटपुट क्या होगा उसका, इलेक्ट्रिकल होगा. ठीक है, यहाँ पे होगा उसका टर्मिनल वोल्टेज VT. यहाँ से आने वाली जो करंट होगी जनरेटर की दिस विल बी आर्मेचर करंट IA. ठीक है, यहाँ पे जो करंट चली जाएगी दिस विल बी फील्ड करंट IF. एंड यहाँ से जो करंट जाएगी दिस विल बी व्हाट, लाइन करंट IN और लोड करंट IE, यू कैन कॉल इट लाइक दिस. ठीक है, और यहाँ पे जो होगा दिस विल बी नथिंग बट जनरेटेड EG EMF EG. ठीक है, और यहाँ पे जो रहेगा आपके पास दिस विल बी द प्राइम मूवर व्हिच इज गोइंग टू रोटेट दिस मशीन. ठीक है, इस टाइप से रहने वाला. तो आपको सबसे पहले जब मैं एफिशिएंसी, ठीक है मैं चाहे तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ
कि फॉर जनरेटर, ठीक है, फॉर जनरेटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी आप जनरेटर की बात करोगे तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ जनरेटर द इनपुट इज व्हाट, इनपुट इज मैकेनिकल एनर्जी, इनपुट इज व्हाट मैकेनिकल एनर्जी, input is what mechanical energy, and output is going to be equals to electrical energy, and what P out is going to be electrical energy, ठीक है। अब इसमें अपन को देखना है कि भाई जो मैकेनिकल एनर्जी होगी जो कि इनपुट है यहाँ पे जनरेटर के लिए, तो कहाँ से प्रोवाइड होने वाली है, जो आपका प्राइम मूवर होगा, प्राइम मूवर विल प्रोवाइड द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। प्राइम मूवर इज गोइंग टू गिव अस इनपुट टू, इट इज गोइंग टू गिव इनपुट इन केस ऑफ व्हाट जनरेटर। सो यहाँ से अपन के पास क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है, सो आई कैन कॉल इट एज व्हाट इनपुट। समझ में आ रही बात। और आपको एक क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक शाफ्ट दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है भाई, शाफ्ट दिख रहा है। तो ऑब्वियस है कि जब मैं इनपुट की बात करूंगा तो इनपुट में आ रहा है क्या, पी एम, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले जो लॉसेस होंगे जनरेटर के केस में, तो लॉसेस कौन से होंगे भाई, जो पहले दिख रहा है कि मतलब जब इनपुट मैकेनिकल है, सॉरी इनपुट क्या है करेक्ट है, मैकेनिकल है। उसके बाद एक एक शाफ्ट है, तो शाफ्ट में कौन से लॉसेस होंगे, शाफ्ट लॉसेस, और यू कैन कॉल इट रोटेशनल लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस, बेरिंग लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉसेस होंगे आपके पास, कौन से लॉसेस होंगे, दीज आर नथिंग बट व्हाट मैकेनिकल लॉसेस, दीज आर नथिंग बट व्हाट मैकेनिकल लॉसेस, यू कैन कॉल इट इज व्हाट रोटेशनल लॉसेस, यू कैन कॉल देम व्हाट रोटेशनल लॉसेस, और यू कैन कॉल देम व्हाट, और आप उसको क्या कह सकते हो, मैकेनिकल लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस, और बेरिंग लॉसेस वगैरह भी बोल जाएंगे आपको, ठीक है। बेरिंग्स वगैरह होंगी, उसमें भी जो लॉसेस होंगे, दोस ऑल लॉसेस विल टेक्स प्लेस इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो पावर आएगी आपके पास आर्मेचर में, यहाँ पे जो पावर आएगी आपके पास आर्मेचर में बेटा, तो वो वाली जो पावर होगी आपके पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी आर्मेचर पावर, पी आर्मेचर, और यू कैन कॉल इट एज व्हाट पी डेवलप्ड पावर आएगी आपके पास, डेवलप्ड। समझ में आ रही है आपको बात। बहुत सिंपल तरीके से देखना है, मैं सब कुछ आपको यहीं पे दिखाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, डिफिकल्टी इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इतना आसान एग्जाम्पल है और इतना आसान तरीके से आपको समझना है। एग्जाम्पल नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसान है। उसके बाद जैसे कि आप देखिए जो आर्मेचर में से जो पावर चले जाएगी, तो देखिए यहाँ पे आपके पास ब्रशेस है, तो इसमें क्या होगा भाई, ब्रश लॉस होने वाला होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, पी ब्रश होगा। मैं सारी चीज़ आपको अच्छे से लिख दूंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं उसका पावर फ्लो का इक्वेशन बताऊंगा आपको, पावर फ्लो बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। उसके बाद देखिए जब आपकी पावर जब इधर से जा रही है, तो मतलब ये करंट तो इधर से जाएगा ना, तो यहाँ पे कौन से लॉसेस होंगे, दिस विल बी व्हाट आर्मेचर लॉसेस, आर्मेचर सर्किट लॉसेस, यू कैन कॉल देम आर्मेचर कॉपर लॉसेस, आर्मेचर आइस्क्वायर लॉसेस कह सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इधर जो जा रही है करंट, क्योंकि अपन को तो अल्टीमेटली तो लोड तो यहाँ पे कनेक्ट होने वाला आपका, यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा बेसिकली, दिस विल बी तो लोड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी होने वाला है आपके पास, यहाँ पे तो लोड होने वाला है, ठीक है। तो लोड के पास देखिए ये आईएल वाली पावर आ रही है, ठीक है। तो आईएल वाली पावर को छोड़ के जितना भी मतलब कि इनपुट और आउटपुट, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। देखिए आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है और इनपुट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो भी कुछ आ रहा है पूरा का पूरा क्या है, लॉस ही होने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हो कि देखिए मैंने जो शुरू किया था, मैंने शुरू कहाँ से किया था, मैंने इनपुट से शुरू किया था। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, शाफ्ट कनेक्टेड है। तो शाफ्ट में कौन से लॉसेस होंगे, मैकेनिकल लॉसेस होंगे, बेरिंग लॉसेस होंगे और रोटेशनल लॉसेस होंगे। समझ में आ रही बात। उसके बाद जो भी कुछ मतलब मैकेनिकल पावर में या इनपुट पावर में से जो मैकेनिकल लॉसेस है उनको अगर मैं माइनस कर दूं, तो जो भी पावर आ रही है मेरे पास कहाँ पे आ रही है, आर्मेचर में आ रही है। तो आर्मेचर में जो पावर आएगी, दैट पावर विल बी व्हाट, इट विल बी आर्मेचर पावर, और आई कैन कॉल इट एज पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर, ठीक है। उसके बाद उसमें से देखा जाए तो ब्रश लॉसेस हो जाएंगे, ब्रश में जो लॉसेस होंगे वाले लॉसेस हो जाएंगे। उसके बाद आर्मेचर, उसके बाद ये वाली पावर देखिए, ये लॉसेस होने के बाद मतलब आर्मेचर पावर में से अगर मैं ब्रश लॉसेस माइनस कर लो, उसके बाद जो पावर आएगी दैट विल बी व्हाट, जो पावर आएगी वो पावर किसको चले जाएगी, रेजिस्टेंस के थ्रू लोड की ओर जाने वाली है। तो रेजिस्टेंस में कुछ लॉसेस होंगे आपके पास, आई स्क्वायर आर लॉसेस, मतलब कि आर्मेचर आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, ठीक है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस की वजह से उसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, कॉपर लॉसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए फील्ड में कुछ करंट चली जाएगी और इधर जो जाएगी वो लाइन करंट जाएगी, ठीक है। तो फील्ड में जो करंट जाएगी, फील्ड में करंट जाने की वजह से फील्ड में जो लॉसेस होंगे, दोज विल बी व्हाट, फील्ड करंट लॉसेस, दोज विल बी व्हाट, फील्ड करंट लॉसेस। और इधर जो चली जाएगी आपके पास, यहाँ पे जो आएगा फिर दिस विल बी व्हाट आउटपुट पावर, दिस विल बी व्हाट आउटपुट पावर। अब आप में से कुछ लोग इनमें बोलेंगे सर कि इसमें जो नो लोड लॉसेस वगैरह जो होते हैं वगैरह, नो लोड लॉसेस वगैरह भाई उसके बारे में फिलहाल डिस्कस बिल्कुल नहीं करना, उसके लिए एक अलग टेस्ट अपन कंडक्ट कराएंगे। स्विनबर्न टेस्ट करके टेस्ट होगा, वो अपन उसको कंडक्ट करेंगे, तब मैं उसके बाद बताऊंगा। फिलहाल बस मेरा मकसद ये है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सा लॉसेस हो रहा है, कैसे लॉसेस हो रहे हैं।
आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट होगा उसका आर्मेचर का, क्या बोल रहा हूँ मैं, आर्मेचर का जो पार्ट होगा, और वहाँ पे जब आप उसमें जो आर्मेचर के अंडर के जो भी मैंने आपको जो वर्किंग प्रिंसिपल समझाया था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो उसमें फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कैसा होगा, इन केस ऑफ डीसी मशीन कांस्टेंट फ्लक्स होने वाला है। द नेचर ऑफ द फ्लक्स इन केस ऑफ डीसी मशीन कौन सा होने वाला है, कांस्टेंट फ्लक्स होने वाला है। कैसा होने वाला है, कांस्टेंट फ्लक्स। तो फ्लक्स डेंसिटी आएगी वहाँ पे। तो आपको एक बात पता चल रही होगी कि जब मैं कोर लॉसेस की बात किया था ट्रांसफार्मर में, कोर लॉसेस जो होता है जो मैंने समझा तो उसमें रेट ऑफ चेंज जब आ गया, मतलब ऑब्वियसली इसमें भी आता है, तभी तो उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि डिफाई बाई डी अगर लाना है तो किस तरीके से लाओगे। रेट ऑफ चेंज जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे तो आपके पास मतलब तो उसकी वजह से जो लॉसेस आएंगे वो लॉसेस तो यहाँ पे आने वाले, इसका मतलब यहाँ पे तो कोर लॉसेस भी होने वाले होंगे। आर्मेचर कोर में जो लॉसेस होंगे, फ्लक्स डेंसिटी आ रही है उसमें कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी आ रही है, तो उसकी वजह से कांस्टेंट फ्लक्स लॉसेस होंगे। उन लॉसेस में हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस होंगे। आप में से आधे लोग सोच रहे होंगे कि सर आप में जो बता रहे हैं कि हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस थोड़ा हमें जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। बट आप बिल्कुल आप जो सोच रहे हो सही है, बिल्कुल सोच रहे हो, क्योंकि आप जब डीसी की बात करते हो, जब डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती आप ऐसा मानते तो उसकी वजह से, और आप बोलते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी लॉस, जो हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस होते हैं तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जब आप उसको स्पीड के टर्म्स में डाल दोगे ना, या स्पीड के टर्म्स में जब आप उसको कन्वर्ट कर दोगे तो आराम से आपको वही मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे तो रेट ऑफ चेंज आ रहा है, जहाँ पे रेट ऑफ चेंज आएगा वहाँ पे तो एडी करंट लॉसेस आने वाले, क्योंकि फ्लक्स का चेंज तो हो ही रहा है कंटिन्यूसली वहाँ पे। तो समझ में आ रही बात? और तो इसको, और आपको अगर एक बात अगर याद आ रही होगी तो मैंने उसमें जो आपको पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह उस टाइम पे समझा था, तो एक जगह पे मैंने वहाँ पे इंसुलेशन की, सॉरी लैमिनेशन की बात करी। तो लैमिनेशन की बात जहाँ पे की जा रही है मतलब ऑब्वियसली कि वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आने वाला होता है। जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ गया है तो ऑब्वियसली कि वहाँ पे एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस आ गए। इतना समझ में आ गया? तो वहाँ पे कौन कौन से लॉसेस होंगे, कांस्टेंट लॉसेस भी होंगे वहाँ पे। कौन से कांस्टेंट लॉसेस भी होंगे? तो मुझे लगता है कि आपको अभी फिलहाल मतलब जो बेसिक लॉसेस होते हैं सारे के सारे लॉसेस के बारे में फिलहाल तो अच्छे से पता चला ही होगा। अब मैं आगे इसके जब हम बात करूंगा तो उसमें देखिए कौन कौन सी बात की जा सकती है, मतलब कि जो पावर फ्लो होगा, पावर फ्लो में की टाइप की बात होने वाली है। अब पावर फ्लो में देखिए मैं पहले पावर फ्लो करने से मतलब पावर फ्लो का डायग्राम, ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। तो देखिए जब मैं उसका पावर फ्लो का डायग्राम बनाऊंगा तो सबसे पहले अपन इनपुट में क्या लिखेंगे, और जो इनपुट रहेगा ना आपके पास, इनपुट विल बी व्हाट, इनपुट विल बी मैकेनिकल। इनपुट क्या रहने वाला आपके पास, मैकेनिकल एनर्जी रहेगा। Input will be mechanical and this input will be from what, it will be by the prime mover। कौन प्रोवाइड करेगा इस इनपुट को, दिस इनपुट विल बी प्रोवाइडेड बाय प्राइम मूवर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए जो भी लॉसेस जाने वाले होंगे आपके पास, ये लॉसेस कौन से होंगे, ये जो लॉसेस होंगे भाई आपके पास, दीज लॉसेस विल बी, ये जो लॉसेस होंगे, यहाँ पे जो लॉसेस होंगे मैंने पहले बोला था, पहला क्या है आपके पास मैकेनिकल पावर है, तो लॉसेस कौन से होंगे फिर, मैकेनिकल पावर, मतलब इनपुट तो मैकेनिकल पावर है। दिस इनपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, शाफ्ट पावर। कौन सा पावर कह सकता हूँ मैं उसको, शाफ्ट पावर। अब भूल जाओगे उसको लिखने के लिए, लेकिन लिख लीजिएगा, दिस विल बी व्हाट, पी शाफ्ट बोलेगा आपको। ठीक है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट द पी शाफ्ट, शाफ्ट पावर होगा। ठीक है, उसके बाद इनपुट के बाद देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, रोटेशनल लॉसेस होंगे, क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, शाफ्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, शाफ्ट आ रहा है, तो वहाँ पे कौन से लॉसेस होंगे, रोटेशनल लॉसेस होंगे। कौन से लॉसेस होंगे भाई, रोटेशनल लॉसेस। ठीक है, फिर मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर विल बी व्हाट, रोटेशनल लॉसेस। ठीक है, यही पे और कौन से लॉसेस होने वाले होंगे आपके पास, मैकेनिकल लॉसेस। रोटेशनल लॉसेस मींस व्हाट, मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है, और यही पे जब अपन उसका ओपन सर्किट टेस्ट जब डीसी मशीन के ऊपर कंडक्ट कराते हैं तो वहाँ पे जो नो लोड लॉसेस आते हैं, नो लोड लॉसेस में अपन क्या होता है, रोटेशनल लॉसेस होते हैं, कोर लॉसेस होते हैं उसमें। ठीक है, तो मैं उसको बोल देता हूँ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट कोर लॉसेस। क्या, ओपन सर्किट कोर लॉसेस। ठीक है, और जो रोटेशनल लॉसेस होंगे इसमें आप कह सकते हो कि बेरिंग लॉसेस भी कह दीजिएगा, और मैकेनिकल लॉसेस, बेरिंग लॉसेस। समझ में आ रही बात? ठीक है, और यहाँ पे अगर बोला जाए वैसे तो स्ट्रे लोड लॉस भी इसमें आ सकता है। स्ट्रे लोड लॉस भी इसमें दिखा सकते हैं, लेकिन स्ट्रे लोड लॉस जो होता है ना, ठीक है मैं इसमें दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसमें तो मैकेनिकल पार्ट मतलब जो ऐसा पार्ट होता है कि जिसमें अपन नहीं चाहते कि उसके साथ फ्लक्स लिंक करना चाहिए, लेकिन उसमें अगर ऐसा कुछ मटेरियल होगा कि जिस मटेरियल के साथ फ्लक्स लिंक कर सकता है तो उसमें भी ईएमएफ आ जाएगा। ये सब बातें मैं आपको जब लॉसेस एंड ट्रांसफार्मर समझा था तो उस टाइम पे मैंने उसके बारे में, स्ट्रे लोड लॉस क्या होता है उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्ट्रे लोड लॉस आएगा। ठीक है, स्ट्रे लोड लॉसेस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पे क्या आने वाले होंगे, यहीं पे स्ट्रे लोड लॉसेस भी आएंगे। और स्ट्रे लोड लॉसेस कहाँ पे होते हैं अपन को पता है कि एक ऐसे
अब पार्ट के जिन पार्ट के साथ मतलब कि जो कुछ भी मैग्नेटिक पार्ट हो सकते हैं कि ऐसे पार्ट के जिनके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर सकता है और उनके साथ लिंक करके उसमें ईएमएफ इंड्यूस करके एडीएमएफ की तरफ है, उसमें जो लॉसेस आएंगे दैट दोज लॉसेस विल बी व्हाट स्ट्रे लोड लॉसेस। ठीक है, तो इसमें जो लॉसेस आएंगे दोज लॉसेस विल बी व्हाट, दोज विल बी द स्ट्रे लोड लॉसेस पे आएंगे, उसमें स्ट्रे लोड लॉसेस। ठीक है, और इसमें कौन सा और एक लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस भी कह सकते हो आप उसमें। ठीक है, तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस में यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे आने वाला होगा वो। ठीक है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा आपके पास इनपुट में जो ये जो हाँ मैकेनिकल पावर है उसमें से लॉसेस माइनस होने के बाद जो इनपुट आएगा दैट विल बी द इनपुट टू दी आर्मेचर। ये आर्मेचर के लिए क्या होने वाला है भाई, इनपुट होने वाला है। ठीक है, उसको थोड़ा मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं सर्कुलर ही बनाऊँ। ठीक है, सो ये क्या ना आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी द आर्मेचर ऑफ द डीसी मशीन। क्या है, दिस इज नथिंग बट द आर्मेचर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से लॉस आएंगे, आर्मेचर लॉसेस आएंगे, ई बी मल्टीप्लाई बाई आई ए, इस तरीके से कह सकता हूँ। और इसी को मैं आर्मेचर पावर भी कह सकता हूँ भाई, इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, आर्मेचर पावर कह सकता हूँ, आर्मेचर पावर। या इसी को मैं कह सकता हूँ कि पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, क्या कह सकता हूँ, पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर भी कह सकता हूँ, विच इज इक्वल टू व्हाट, ई बी मल्टीप्लाई बाई आई है, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ उसको। ठीक है, इसके बाद जो इसका जो आउटपुट आएगा दैट आउटपुट विल बी व्हाट, एक्चुअली इसको थोड़ा दो अलग अलग पेन से निकालना था मुझे। तो जो आउटपुट आएगा आपके पास, दिस आउटपुट विल बी this output will be given to the ब्रशेस, वाया ब्रशेस इट इज गिवन टू द लोड। ठीक है ना, वाया ब्रशेस दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से आएंगे देखिए, फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रशेस के थ्रू जाने वाली होगी, पावर किसकी ओर जाने वाली होगी, लोड की ओर। तो ब्रश लॉसेस आएंगे, आर्मेचर सर्किट लॉसेस आएंगे, उसके बाद शंट फील्ड सर्किट लॉसेस आएंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या होने वाला है, पहले सबसे पहले ब्रश लॉसेस क्या होने वाला है, ब्रश लॉसेस। उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे, आर्मेचर, आर्मेचर कॉपर लॉसेस, और मैं कह सकता हूँ कि आर्मेचर आई स्क्वायर आर लॉसेस। क्या बोल रहा हूँ मैं, आर्मेचर आई स्क्वायर आर लॉसेस। और यहीं पे मैं क्या कह सकता हूँ, शंट फील्ड सर्किट लॉसेस, फील्ड कॉपर लॉस। ठीक है, क्या कह सकता हूँ मैं, फील्ड कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस कह सकता हूँ मैं उसको, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इतने सब कुछ होने के बाद यहाँ से जो पावर आने वाली होगी, दिस पावर विल बी व्हाट, दिस विल बी दी लोड पावर, दिस विल बी व्हाट, लोड पावर। इसका मतलब क्या, इसमें से इतने सारे पावर को अगर तुम माइनस करोगे तब जाके आपके पास जो आएगा दैट विल बी व्हाट, लोड पावर, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी द लोड पावर। इस तरीके से अपन का पावर फ्लो होने वाला है इन केस ऑफ द जनरेटर, इन केस ऑफ द व्हाट, जनरेटर की केस में ये क्या होने वाला आपके पास, ये पावर फ्लो इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, इस टाइप से। अब इसके आगे अगर देखा जाए तो देखिए आपको क्या पता चल रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये वाला जो पार्ट आपको इतना दिखाई दे रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, मीन्स दिस इज द मैकेनिकल पार्ट, और मैं कह सकता हूँ क्या, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज द व्हाट, दिस इज नथिंग बट द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, and it is provided by प्राइम मूवर। क्या है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय प्राइम मूवर, इस टाइप से रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी कुछ पावर आने वाली होगी, दिस पावर विल बी व्हाट, दिस लोड पावर विल बी द इलेक्ट्रिकल पावर, दिस लोड पावर विल बी व्हाट, दिस विल बी द इलेक्ट्रिकल पावर। और इलेक्ट्रिकल पावर का इक्वेशन किस तरीके से होगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी द इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर।
expression for the electrical power will be what? It will be Vt multiplied by IL, Vt multiplied by what? IL. इस टाइप से होने वाला है. This is going to be what? This is going to be nothing but the load power होने वाला है आपके पास, ठीक है. इस टाइप से, and this is nothing but what? This is the armature of the machine. This is the armature of the machine. This is the armature, ठीक है. इस टाइप से होने वाला है आपके पास, ठीक है. एंड दिस इज गोइंग टू काउंट द पावर फ्लो डायग्राम ऑफ द डीसी जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, ठीक है. तो जनरेटर का क्या होने वाला है बेसिकली बेटा है, दिस इज नथिंग बट द पावर फ्लो डायग्राम ऑफ द जनरेटर, ठीक है. दिस इज द फिगर कैसा है, पावर फ्लो डायग्राम ऑफ द जनरेटर, पावर फ्लो डायग्राम ऑफ जनरेटर, ठीक है. इस टाइप से होने वाला है. और इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है. इस तरीके से. तो इस टाइप से अपन को देखना है कि इसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से. तो क्योंकि इसमें अगर आपको कहीं पे डिफिकल्टी लग रही है, इसका मतलब आपका पावर फ्लो का जो इक्वेशंस होगा वो इक्वेशंस गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है. अब इसमें जो भी कुछ इक्वेशंस यूज़ किए जाने वाले वो सारे के सारे इक्वेशंस के बारे में बता दूंगा. अब आपको एक बात मैं बता दूं कि इसमें मतलब कि जो मैं पहले इक्वेशंस बताने वाला हूँ उसके पहले भी एक बात बता दूं बेटा, जब आप पावर फ्लो डायग्राम ऑफ जनरेटर याद रखोगे तो बस आपको एक बात पता होनी चाहिए कि फॉर जनरेटर द पावर इज गोइंग टू फ्लो लाइक दिस, whereas in case of the motor the power is going to flow like this. If you want I should draw both the direct मतलब दोनों की दोनों चीज़ें अगर मैंने अलग तरीके से निकालनी चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दोनों की दोनों मैं अलग तरीके से निकाल दूंगा. बस आपको थोड़ा सा चेंज कर देखना पड़ेगा कि that change will be only in case of the power, in case it will be only in case of the direction of the power. मतलब पावर का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है. आप देख सकते हो कि जो एरो का जो डायरेक्शन है बेटा, वो एरो का डायरेक्शन कैसा है ना आपके पास, इस साइड जो इनपुट पावर से वो आउटपुट पावर की ओर है. इसका मतलब अगर इनपुट आपका मैकेनिकल है और आउटपुट अगर आपका इलेक्ट्रिकल है, इसका मतलब क्या होने वाला है, दिस इज नथिंग बट दी जनरेटर, ठीक है. और अगर मैं बात करूँ कि पावर फ्लो का डायग्राम या पावर का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल की ओर होगा, तो इसका मतलब क्या, जो पावर फ्लो होगी किसके लिए होगा, दिस पावर फ्लो डायग्राम विल बी एप्लीकेबल फॉर द मोटर. तो मोटर जनरेटर में सिंपल डिफरेंस होता है, इनपुट क्या है मैकेनिकल, इसका मतलब वो जनरेटर, आउटपुट क्या है आपके पास इलेक्ट्रिकल, इसका मतलब क्या, जनरेटर. इनपुट क्या है इलेक्ट्रिकल और आउटपुट क्या है मैकेनिकल, इट मींस इट इज अ मोटर. सो ये सिंपल तरीका है किसी भी मशीन को याद रखने का, और आपको इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी किसी भी पावर किसी भी जगह पर डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत नहीं है. अब मैं उसकी इक्वेशंस के बारे में बता देता हूँ आपको कि डिफरेंट इक्वेशंस इन द पावर फ्लो, इक्वेशंस इन पावर फ्लो कैलकुलेशंस. समझ में आ रही बात. तो सबसे पहले आप किसकी बात करोगे, जो इनपुट है, इनपुट क्या आपके पास मैकेनिकल है, ठीक है. तो इनपुट देखिए आपके पास क्या होने वाला है भाई, इनपुट इज गोइंग टू बी व्हाट, मैकेनिकल. सो पी इन इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी द मैकेनिकल पावर, पी इन इज गोइंग टू बी व्हाट, मैकेनिकल पावर, ठीक है. उसके बाद पी रोटेशनल की बात जब मैं करूँगा तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस. उसमें सारे लॉसेस जो होंगे मैकेनिकल लॉसेस में उसको मतलब कंक्लूड बोल दूंगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ठीक है. उसको चाहे तो मैं पी मैकेनिकल कह सकता हूँ, इस टाइप से मैं कह दूँ उसको, ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ तो आर्मेचर पावर के बारे में अगर बात करूँ तो पी है, ठीक है. पी आर्मेचर, इसका मतलब क्या, दिस इज गोइंग टू बी आर्मेचर पावर. ये सारे के सारे क्या है, इक्वेशंस इन पावर फ्लो. तो पहले मैं बता दे रहा हूँ कि उसके टर्म्स क्या है, आर्मेचर पावर, ठीक है. उसके बाद पीसीयू आर्मेचर, इसका मतलब लॉसेस, कॉपर लॉसेस एंड आर्मेचर, डायरेक्टली मैं बोल दे रहा हूँ लॉसेस एंड आर्मेचर, डायरेक्टली इसको मैं बोल देता हूँ लॉसेस इन आर्मेचर, ठीक है. उसके बाद पी शंट, these are the losses in
शंट वाइंडिंग, इस टाइप से भाई, ठीक है, इस टाइप से होगा। अब देखिए इसके जो इक्वेशंस इन पावर फ्लो, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ उसको टर्म्स इन पावर फ्लो लिख देता हूँ, फिर बाद में अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशंस किस तरीके से, मतलब इक्वेशंस के लिए ठीक है। तो आपके पास जो होगा सबसे पहले देखा जाए तो कौन सा पावर आएगा, देखिए अगर मैं बात करूँ किसके, पी आउट किस तरीके से आने वाला है, देखिए पी इन माइनस रोटेशनल लॉसेस, ठीक है, इतना बड़ा लिखने से अच्छा कि मैं छोटा ही लिख देता हूँ, पी रोटेशनल लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है, आपको समझ जाएगा, पी रोटेशनल माइनस पी फ्रिक्शन एंड विंडोज तो उसमें ही आ जाएंगे, मैं डायरेक्टली उसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पी आउट इज इक्वल्स टू पी इन माइनस पी रोटेशनल माइनस पी आर्मेचर माइनस पी ब्रश, ठीक है, माइनस पी शंट, ठीक है। इसमें एक और मैं छूट गया लिखने के लिए, दिस इज व्हाट पी कोर, ठीक है, क्या होगा पी कोर, इस टाइप से आ जाएगा ये भैया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पी आउट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, पी आउट विच इज इक्वल्स टू व्हाट पी लोड विच इज इक्वल्स टू व्हाट वी टी मल्टीप्लाई बाई व्हाट आई एल, विच इज मल्टीप्लाई बाई व्हाट वी टी मल्टीप्लाई बाई व्हाट आई एल, इस टाइप से आने वाला है आपके पास, ठीक है। अब जब मैं इसकी बात करूँगा किसकी, जब मैं आर्मेचर पावर की बात करूँगा या मैकेनिकल पावर, ठीक है ना, उसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, दिस इज द मैकेनिकल पावर इन मैकेनिकल पावर, ठीक है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, आर्मेचर पावर लॉसेस। अब मैं सपोज अगर इनके इक्वेशन में लिख देता हूँ, आर्मेचर पावर लॉसेस जो होंगे भाई, दीज विल बी इक्वल्स टू व्हाट आर्मेचर का करंट मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर ए, ठीक है, इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे। सिमिलरली अगर मैं पी शंट लॉस की बात करूँगा तो दीज आर द लॉसेस इन शंट फील्ड वाइंडिंग, लॉसेस इन शंट फील्ड वाइंडिंग स्टेप से आएंगे भैया, ठीक है। दिस विल बी व्हाट वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट आर एस एच, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट आई एस एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई व्हाट आर एस एच, इस टाइप से आने वाले होंगे आपके पास, ठीक है। और ये लॉसेस अगर आपके पास आराम से, मतलब आपने अगर अच्छे से उनको अगर डिटरमाइन कर लिया तो आप उसको आराम से लिख पाओगे, ठीक है। इसमें एक और बात आएगी, डैट विल बी व्हाट आर्मेचर पावर डेवलप, या आर्मेचर पावर बोला जाएगा, नहीं तो पावर डेवलप, दिस विल बी व्हाट आर्मेचर, this will with armature power comma power developed, this will be what eb multiplied by what armature current I, this will be what this will be nothing but the eb multiplied by armature current I, इस टाइप से आने वाला होगा, ठीक है। अगर ये आपने अच्छे से उसको लिख लिया है तो मतलब आगे जो पूछा जाएगा, क्या पूछा जा सकता है फिर आगे, आगे तो क्या पूछा जा सकता है इसमें, ब्रश लॉसेस, फील्ड सर्किट लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस, ओपन सर्किट लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, बेरिंग लॉसेस, ठीक है। तो इस टाइप से तो मतलब पूरे के जितने 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 भी लॉसेस थे अप्रॉक्सीमेटली मैंने तो सारे के सारे लॉसेस आपको लिख के दिए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो मतलब सारी चीज़ें अपन ने उसके रिगार्डिंग तो बात कर ही ली है। ये जनरेटर के लिए था सेम एज इट इज़ एप्लीकेबल फॉर मोटर, बस इतना होगा कि पावर का जो फ्लो होगा यहाँ से मतलब कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल की ओर, तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल और हो जाएगा, बस सिर्फ एरो जो होंगे, एरो के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, बाकी एज इट इज़ वो जैसे का वैसा मोटर के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आने वाला होगा, दिस विल बी इनपुट पावर, सो दिस इज द इनपुट पावर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लॉसेस होंगे आपके पास, शंट फील्ड सर्किट लॉसेस, क्योंकि देखिए अभी मैं डायग्राम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मतलब कि आपको बिल्कुल भी कहीं पे टेंशन ना रहे, इसके लिए मैं डायग्राम चेंज करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिएगा भाई, अब जो फिगर मैं बनाऊंगा डैट विल बी फॉर मोटर नॉट फॉर द जनरेटर, ठीक है, सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, उसको अपन देख लेते हैं। करंट के डायरेक्शन चेंज होंगे या नहीं होंगे भाई, डीसी मशीन की बात करें और भी मोटर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि भी चेंज होगी, क्योंकि जनरेटर के अपोजिट रहेगा इसमें, ठीक है। दिस विल बी
EB back EMF, and this is the armature resistance RA. These are the brush drop, and ठीक है, इस टाइप से दिस विल बी द टर्मिनल वोल्टेज VT, ठीक है। अब जो करंट का फ्लो होगा किस तरीके से होगा, आर्मेचर करंट विल एंटर इनटू द आर्मेचर, दिस विल बी व्हाट फील्ड करंट IA, और जो यहाँ से करंट आएगी दिस विल बी व्हाट लाइन करंट IL। कौन से करंट होगी, लाइन करंट होगी, दिस विल बी द फील्ड रेजिस्टेंस RF, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसका जो आउटपुट रहेगा, बेसिकली अभी देखा जाए तो मोटर का जो आउटपुट रहेगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट है तो आउटपुट क्या रहेगा इसका, मैकेनिकल रहेगा भाई, आउटपुट क्या रहेगा, मैकेनिकल रहेगा। आपको अभी ये बातें अच्छे से पता रहनी चाहिए। दीज आर द P आउट, एंड देखा जाए तो दिस विल बी व्हाट, दिस इज नथिंग बट द इनपुट। ये क्या रहेगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी द इनपुट, P इन। समझ में आ रही बात, इस तरीके से ये आएगा, ठीक है ना। अब देखना इसमें होगा क्या, इनपुट क्या आपके पास मैकेनिक इलेक्ट्रिकल है भाई, इनपुट क्या है इलेक्ट्रिकल, सो P इन इज इलेक्ट्रिकल, P इन इज इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एंड P इन इलेक्ट्रिकल क्या है आपके पास, VT मल्टीप्लाई बाय व्हाट IL। समझ में आ रही बात। उसके बाद आउटपुट क्या रहने वाला आपके पास, मैकेनिकल रहने वाला, मैकेनिकल एनर्जी में कह सकता हूँ उसको, ठीक है। P आउट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज गोइंग टू द मैकेनिकल एनर्जी, क्या ना मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद जब मैं बात करूंगा किसकी, जब मैं बात करूंगा मैकेनिकल एनर्जी, तो आउटपुट जो रहेगा आपके पास दैट विल बी व्हाट, मैकेनिकल पावर क्या रहेगा आपके पास, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय स्पीड, डिपेंड करेगा उस टाइप से दिया होगा, उस टाइप से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। शार्प टॉर्क, लेकिन ये क्या रहेगा, शार्प टॉर्क रहेगा, TSH रहेगा, शार्प टॉर्क रहेगा, क्योंकि ये तो आउटपुट जो पावर मिलने के डायरेक्टली दैट विल बी शार्प पावर रहेगी। किसकी कौन से पावर रहेगी, शार्प पावर रहेगी। अब बेटा मैं जो भी बोलूंगा ना पूरी की पूरी आप अच्छे से देखना कि देखिए क्या पावर फ्लो किस तरीके से होने वाला है। देखिए यहाँ से इनपुट पावर आएगी, इनपुट पावर आ रही है, मतलब दिस पावर इज नथिंग बट या कौन सी, दिस इज द VT मल्टीप्लाई बाय IL। ये आपके पास इनपुट पावर है, दिस पावर इज कमिंग टू दिस वे। उसके बाद इसमें से कुछ पावर चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, शंट फील्ड, कौन से लॉसेस होंगे, शंट फील्ड लॉसेस होंगे। एयर जो लॉसेस होंगे या दोज विल बी शंट फील्ड लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट द आर्मेचर लॉसेस होंगे। यहाँ पे कौन से लॉसेस होंगे आपके पास, दिस विल बी द आर्मेचर लॉसेस। आर्मेचर में जो लॉसेस होंगे उनको तुम आर्मेचर लॉसेस बोलेंगे। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द ब्रश लॉसेस। कौन से लॉसेस होंगे ये, दिस विल बी ब्रश लॉसेस, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फील्ड जो रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये लॉसेस होंगे। फिर देखिए जो भी इनपुट पावर आ रही है उसमें से ये लॉसेस माइनस कर देंगे, आर्मेचर सर्किट के लॉसेस माइनस कर देंगे, माइनस ब्रश लॉसेस माइनस कर देंगे। इन लॉसेस को माइनस करने के बाद जो भी पावर आएगी दिस विल बी द आर्मेचर पावर, और आई कैन कॉल इट इज व्हाट, पावर डेवलप्ड बाय द आर्मेचर, और आई कैन कॉल इट इज व्हाट, पावर डेवलप्ड बाय द आर्मेचर, ठीक है। उसके बाद इसमें से जो भी कुछ लॉसेस आएंगे, जो भी पावर डेवलप्ड बाय आर्मेचर है, डेवलप पावर में से अगर मैं मैकेनिकल लॉसेस मतलब रोटेशनल लॉसेस, बेरिंग लॉसेस और फ्रिक्शनल विंडेज लॉसेस जो लॉसेस होंगे उनको अगर मैं माइनस कर दूंगा, तब जाके मुझे आउटपुट पे जो पावर आएगी दैट विल बी व्हाट, शाफ्ट पावर। कौन सी पावर रहेगी, वो शाफ्ट पावर रहेगी। मैं इसको नाम भी दे देता हूँ चाहे तो, क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। दिस विल बी द व्हाट, दिस विल बी द शाफ्ट पावर, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द शाफ्ट पावर, ओके। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से अपन ने उसका पावर फ्लो देखा। अब मैं बस आपको जो वहाँ पे जो लिख के दिया पूरा का पूरा एज इट इज मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो बेटा जब आप इलेक्ट्रिकल पावर जब उसको इनपुट दे रहे हो, तो इनपुट में से देखिए कुछ लॉसेस इसमें होने वाले होंगे, कुछ लॉसेस इसमें होने वाले होंगे, ठीक है। और इस लास्ट पहले मैं, ठीक है, यहाँ पर नाम चेंज कर दूँ, जनरेटर की जगह पे मैं मोटर कर देता हूँ, ठीक है। तो जनरेटर की जगह पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे मोटर कर देता हूँ, ठीक है। इस टाइप से वो कह दूँ मैं, ठीक है। तो ये वाली इनपुट पावर है, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, उसमें से शंट फील्ड सर्किट लॉसेस, आर्मेचर लॉसेस, ब्रश लॉसेस, जो भी लॉसेस होने वाले होंगे सारे के सारे लॉसेस मैं उसमें से रिडक्ट कर दे रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ रिड्यूस कर दे रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि तभी तो तुम्हें आगे वाली पावर मिलने वाली होगी, बिल्कुल। तो फिर मेरे पास यहाँ पे जो आएगा दिस विल बी द आर्मेचर पावर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्मेचर पावर, और पावर डेवलप्ड बाय द आर्मेचर विच इज गोना बी इक्वल्स टू EB मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट IA, विच इज गोना बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज गोना बी इक्वल्स टू EB मल्टीप्लाई बाय IA, ठीक है। इस टाइप से उसके बाद आर्मेचर की जो पावर आएगी, दिस पावर विल फ्लो थ्रू द शाफ्ट, दिस पावर विल फ्लो थ्रू व्हाट, शाफ्ट। ये बेसिकली देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द शाफ्ट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, शाफ्ट पावर है कि आपके पास है। और ये शाफ्ट के थ्रू जब जाएगी तो मुझे एक बात बोलो, उसमें कौन कौन से लॉसेस होंगे, रोटेशनल लॉसेस होंगे, इसमें बेरिंग लॉसेस होंगे, इसमें ओपन सर्किट लॉसेस होंगे, और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होने वाले हैं। इसमें क्या होने वाले, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होने वाले हैं,
समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो ये लॉसेस होने के बाद आपके पास जो यहाँ पे जो पावर आएगी शाफ्ट पे, शाफ्ट का जो आउटपुट रहेगा आपके पास, ठीक है, जो आउटपुट रहेगा शाफ्ट का, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी दी आउटपुट पावर, दिस विल बी व्हाट, आउटपुट पावर. Mechanical energy provided by prime mover, but this will be what, this will be the output energy, this will be mechanical energy will be provided by, will be provided to, mechanical energy will be provided to the what, किसको प्रोवाइड करोगे, जो होगा पंप होगा उसको प्रोवाइड करेंगे, या कोई भी एक ऐसा जहाँ पे आपको मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है उसको तुम प्रोवाइड करोगे. पंप, खास करके पंप वगैरह जो कुछ लोड होंगे, टू लोड, टू मैकेनिकल लोड कह सकते हो चाहे तो. मैकेनिकल एनर्जी इज प्रोवाइड, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइडेड टू लोड. अब लोड जैसे कि मैंने पंप बता दिया, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें तो मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है आपको. समझ में आ रही बात? जैसे कि मोटर वगैरह या बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. हाँ, तो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज मैकेनिकल, दिस इज द पी शाफ्ट. बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे पी शाफ्ट लिख देता हूँ, पी शाफ्ट यहाँ पे आने वाला होगा. ठीक है, दीज आर द रोटेशनल लॉसेस, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है. तो इसका मतलब क्या, आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इसे चेंज करने वाली ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है. अगर बहुत सारी चीज़ें अगर चेंज करने वाली ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है. एक्सक्यूज में, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ पावर जो होगी, डायरेक्शन ऑफ द करंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द पावर फ्लो इन केस ऑफ द डीसी मशीन एज वेल, एंड इन केस ऑफ द डीसी मशीन में जनरेटर एंड मोटर में. ठीक है, तो पावर फ्लो इसमें बस क्या है ना, रिस्पॉन्सिबल. अब इसको अगर देखा जाए तो आउटपुट पावर इनपुट पावर में अगर देखा जाए तो सिंपल अगर मैं बता दूं तो देखिए आपके पास जो पावर में इनपुट आएगा ये तो बेटा एज इट इज तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि देखिए आउटपुट में से आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस ऑल द लॉसेस. व्हाट, इनपुट माइनस ऑल द लॉसेस. आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो इनपुट रहेगा, इनपुट क्या रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर रहेगी. इनपुट क्या रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर रहेगी. ठीक है, तो मैं इसको इलेक्ट्रिकल कर दूँ, दिस इज द इलेक्ट्रिकल. ठीक है, उसके बाद पी रोटेशनल फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, आर्मेचर सर्किट लॉसेस, शंट फील्ड लॉसेस. ठीक है, ये तो सही है इस टाइप से. ठीक है, उसके बाद ये तो सही है, आर्मेचर पावर डेवलप वगैरह, बाकी सब चीज़ें तो इसमें सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. बस यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस विल बी द इनपुट पावर विच इज इक्वल टू व्हाट, सप्लाई पावर. ठीक है, इनपुट पावर इज इक्वल टू पी सप्लाई which is equals to terminal voltage multiply by what, IL आर्मेचर करंट, multiply by what, IL आर्मेचर करंट. अब आपको एक बात इसमें मैं और एक बता दूं कि मैं जैसे कि नाम दिया ही है एफिशिएंसी ऑफ द डीसी मशीन, तो एफिशिएंसी के बारे में मैंने बात किया नहीं. तो एफिशिएंसी क्या होता है, आपके पास आउटपुट और इनपुट इन दोनों का जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर विद रिस्पेक्ट टू इनपुट पावर, दिस विल डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ द डीसी मशीन, नॉट अ डिफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी कॉमा eta is equals to what, P out upon P in, P out upon what, P in, P out upon P in. ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 100. सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बिकम द परसेंटेज एफिशिएंसी, दिस विल बिकम व्हाट, परसेंटेज एफिशिएंसी. इस तरीके से बनेगा. तो बेसिकली आप देख सकते हो कि इसमें जो मैंने जो भी कुछ समझाया है उसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कहीं पे, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे डिफिकल्टी. अगर आपका सिर्फ इवन ए वाला सर्किट भी अगर अच्छे से आपने कर लिया ना, तो उसमें से आराम से आपको डायरेक्टली पावर फ्लो पता चल जाएगा. बस आपका यहाँ पे जो देखने का नजरिया बेटा वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नजरिया बहुत अच्छे से क्लियर तो आप इसके रिलेवेंट पूरी की पूरी बहुत अच्छी बातें कर सकते हो मेरे हिसाब से. समझ में आ रही बात? इसके अच्छे से आप बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से बात कर सकते हो. इसमें डिफिकल्टी मेरे हिसाब से कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली करंट जिस तरीके से फ्लो रहा है बस उस तरीके से आप उसमें से क्या कीजिएगा, पावर फ्लो के इक्वेशंस लगाते जाइएगा. जहाँ पे पहले एंटर कर रहा है दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, इट विल बी द इनपुट. फिर कहाँ पे जा रहा है और आउटपुट में जाने के लिए उसको कितने तरीके, मतलब कितनी जगह पे उसको लॉस करना पड़ेगा वो पहले देख लीजिएगा. और आउटपुट और इनपुट इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज डिफरेंस जो है दैट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट द लॉसेस. आउटपुट और इनपुट इन दोनों के बीच का डेविएशन इन द पावर क्या रहा है, डेफिनेटली इट विल बी द लॉसेस. ठीक है, इस टाइप से आपको बस, बाकी तो पूरी की पूरी चीज़ें एज इट इज कांस्टेंट है. अब मैं थोड़े इसके बारे में बता दूंगा कि भाई जो इसमें जो नो लोड पावर की बात की जाएगी, नो लोड पावर कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से लाते हैं और क्यों लाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूँगा, स्विनबर्न टेस्ट के बारे में. एंड देन आई विल गो फॉर द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द डीसी मशीन. ठीक है.